آج ہم جناب ڈسکس کریں گے کہ جناب پاکستانی کرنسی جو ہے وہ کس کے دور میں کتنی ڈاؤن فال ہوئی، مثلا کس کے دور میں کتنا ڈالر کا ریٹ مثلا اوپر گیا، پاکستانی کرنسی کتنی ڈاؤن فال ہوئی، اور کس کے دور حکومت میں کون کون سے کرنسی نوٹ جاری کیے گئے۔ پاکستان کا جناب جو مرز وجود میں آیا وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، 14 اگست 1947 کو آیا تھا۔ تو جناب پاکستانی مالیاتی نظام کا آغاز جو تھا وہ جولائی 1948 یعنی کہ 1948 میں شروع ہوا تھا۔ 1 اکتوبر 1948 کو پہلی دفعہ جناب پاکستانی کرنسی نوٹ جاری ہوئے تھے۔ 1947 سے 48 تک پاکستان کو جناب ایک مارجن دیا گیا تھا، مثلا ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ پاکستان اپنی کرنسی نوٹ جاری کر لے۔ تب تک پاکستان کو جناب وہ پاکستان میں US ڈالر جو تھا وہ 1 روپے کے برابر تھا، 1947 سے 1948 تک، جب تک بابا ایک قوم قائد اعظم مثلا زندہ تھے۔ تو تب تک نظام حکومت کو چلانے کے لیے جناب وہی ایک گورنمنٹ انڈیا مثلا برصغیر میں جو نوٹ چل رہے تھے وہی نوٹ جناب 1 سال کے لیے چلتے رہے۔ تو یہ وہ نوٹ تھا جناب جو اس دور میں چلتا رہا ہے۔ میکسیمم اس دور میں بارٹر سسٹم بھی ہوتا تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں لین دین ہوتی تھیں جناب۔ اس کے بعد جناب پاکستان میں جو پہلے کرنسی نوٹ آئے تھے وہ 1948 میں آئے تھے، جو پاکستانی مثلا بینک دولت آف پاکستان یعنی کہ اسٹیٹ بینک نے جاری کیے تھے۔ اس میں جو نوٹ تھے وہ 5 روپے کا تھا جناب، اس میں نوٹ 10 روپے کا بھی تھا، اور یہ 100 روپے کا بھی نوٹ تھا، جو پاکستانی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ مثلا اپنے ایشو کیے تھے۔ اس کے بعد جناب 1948 سے 51 تک یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو رہے تھے وہ لیاقت علی خان صاحب رہے تھے، کیونکہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال تک ہی زندہ رہ سکے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اگر وہ زیادہ زندہ رہ لیتے تو پاکستانی نظام میں اور بہتریاں آ جاتی۔ ڈالر کا ریٹ جناب 1 روپے کے برابر ہی رہا، اور 20 دسمبر 1951 کو جناب لیاقت علی خان صاحب نے قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ پاکستانی نوٹ جاری کیا تھا، 100 روپے والا۔ ویسے تو انہوں نے 1 روپے والا بھی جاری کیا، 2 روپے والا بھی جاری کیا، اور یہ جو 100 روپے والا نوٹ تھا جناب یہ پہلی دفعہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ میں یہ بابا قوم قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ مثلا جاری کیا گیا تھا، اسٹیٹ بینک نے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد جناب خواجہ ناظم الدین صاحب جو تھے ان کی گورنمنٹ آئی، وہ 1951 سے 54 تک مثلا 1951 سے لے کر 54 تک وہ پاور میں رہے، گورنمنٹ میں رہے، اور ان کے دور میں پہلی دفعہ پاکستانی کرنسی ڈاؤن فال ہوئی، یعنی کہ ڈی ویلیو ہوئی، اور ڈالر جو تھا وہ 3 روپے کے، 1 ڈالر 3 روپے کے برابر ہو گیا۔ تو ان کے دور حکومت میں جو ڈالر ڈی ویلیو ہوا تھا وہ 2 روپے ڈی ویلیو ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب گورنمنٹ آ گئی ملک غلام محمد صاحب کی، وہ 1954 سے 1956 تک گورنمنٹ میں رہے، اور ان کے دور میں بھی ڈالر جو تھا وہ برقرار رہا اپنی ویلیو پہ، یعنی کہ 1 ڈالر 3 روپے کا ہی رہا۔ اس کے بعد جناب سکندر مرزا صاحب گورنمنٹ میں آ گئے، 1956 سے 58 تک وہ پاور میں رہے، اور ان کے دور حکومت میں بھی ڈالر جو تھا وہ مینٹین رہا، یعنی کہ 1 ڈالر 3 روپے کے برابر ہی رہا۔ اس کے بعد جناب جنرل ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا دیا تھا، وہ 1958 سے 1968 تک، یعنی کہ تقریباً 10 سے 11 سال وہ پاور میں رہے، اور ان کے دور حکومت میں جناب ڈالر جو تھا وہ 1 روپے مثلا 1 ڈالر جو تھا وہ 4 روپے کا ہو گیا تھا۔ مثلا ان کے دور حکومت میں ڈی ویلیو ہو کے 1 روپے ڈی ویلیو ہوا تھا، یعنی کہ پہلے ڈالر 3 روپے کا ہوتا تھا، تو ان کے دور حکومت میں ڈالر 4 روپے کا ہو گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے مثلا اس کے بعد جنرل یحییٰ خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی جناب، 1968 سے لے کر 71 تک، 1971 تک مثلا جنرل یحییٰ خان گورنمنٹ میں رہے، اور ان کے دور حکومت میں بھی ڈالر جو تھا وہ مزید ڈی ویلیو ہو، 1 روپے ڈی ویلیو ہوا، تو ڈالر جو 1 ڈالر جو تھا وہ 5 روپے کے برابر ہو گیا تھا۔ اس کے جناب بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، وہ 1972 سے 1977 تک رہی، تو ان کے دور حکومت میں ڈالر جناب پہلی دفعہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوا، اور 1 ڈالر 10 روپے کا ہوا۔ مثلا 5 روپے
$1 5 के बराबर था, तो डी वैल्यू हो के वो $10 का होगा, तो डॉलर की वैल्यू में मसलन ₹5 जो ना वो पाकिस्तानी करेंसी डाउनफॉल हो गई, डी वैल्यू हो गई। इसके बाद जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब थे जो थे, उनकी गवर्नमेंट आ गई। वो 1977 से 88 तक रही, ये भी 11 साल मसलन मार्शल लॉ लगा रहा पाकिस्तान में। तो इनके दौर में जनाब $1 जो था वो $20 का हो गया, यानी कि $1 का था, तो उनके दौर हुकूमत में 11 सालों में मसलन डॉलर की वैल्यू ₹10 डी वैल्यू हो गई। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे, इन्होंने जनाब 1982 में इनकी गवर्नमेंट में स्टेट बैंक ने जनाब नई करेंसी के नोट जारी किए, मसलन नए सीरियल नंबर के साथ जारी किए। $1 का नोट, ये पहले भी थे लेकिन उन्होंने नए नए सीरियल नंबर से शुरू किए। $1 का नोट, $2 का नोट और $5 का नोट और $10 का नोट, $50 का नोट, $100 का नोट, मसलन उन्होंने सारे नोट जो थे वो नए सीरियल नंबर से शुरू किए। इसमें कुछ नए नोट नए भी ऐड किए थे, जिस तरह आप 5 का लगा लें, 10 का लगा लें, 50 का, 100 का। तो इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट में ही जनाब 1 अप्रैल 1986 को, यानी कि 1 अप्रैल 1986 को स्टेट बैंक ने एक पाकिस्तान के मसलन सबसे बड़ा करेंसी नोट जो था वो ₹500 का जारी किया। तो ये 1986 में, अगर आप मसलन जनरल नॉलेज के लिहाज से भी आप ये ज़हन में रखिएगा, 1986 में पहली दफ़ा 1 अप्रैल 1986 को ₹500 का नोट जारी हुआ था। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में ही जनाब 18 जुलाई 1987 को स्टेट बैंक ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा करेंसी नोट ₹1000 जारी किया। तो ज़ियाउल हक साहब के दौर में मसलन नोट जो थे वो बड़े बड़े करेंसी के नोट जारी हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर, अब भुट्टो साहबा का दौर जनाब शुरू होता है 1988 से 90 तक, यानी कि इनकी गवर्नमेंट भी तकरीबन 2.5-3 साल रही थी। तो इनके दौर में डॉलर जो था वो ₹22 का हो गया था। मसलन इनके दौर में 20 रुपये से ₹22 तक पहुंच गया था। तो डी वैल्यू कितना हो गया था? ₹2 डी वैल्यू हो गया था मसलन। इसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो 1990 से 1993 तक, मसलन ये भी 3 साल गवर्नमेंट में रहे। तो इनके दौर में जनाब डॉलर जो था वो ₹22 से ₹30 तक चला गया, और उनके दौर में डॉलर जो डी वैल्यू हुआ वो ₹8 हुआ। इसके बाद जनाब फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत आ गई थी। तो वो 1993 से 1996 तक जारी रही, वो भी तकरीबन 3 साल गवर्नमेंट चली इनकी। तो इनके दौरे हुकूमत में जनाब डॉलर जो था वो ₹40 का हो गया था। तो मसलन ₹10 मज़ीद डी वैल्यू हो गया था, ₹30 से बढ़कर ₹40 हो गया था। इसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की दोबारा गवर्नमेंट आ जाती है जनाब 1997 से 1999 तक, और इसमें पाकिस्तानी करेंसी जो थी वो मज़ीद डी वैल्यू होती है, और $1 जनाब ₹50 का हो जाता है। इस ₹40 से बढ़ के 50 का हुआ था, तो ₹10 मज़ीद डी वैल्यू हो गया था। इसके बाद जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आ गया था। वो 1999 से 2007 तक मसलन वो उनका दौरे हुकूमत रहा। तो वो जनाब सदर पाकिस्तान भी बने रहे। तो उनके दौरे हुकूमत में जनाब डॉलर जो था वो 50 से बढ़कर 61 पे चला गया था। मसलन इनके 8 सालों में डॉलर ₹11 डी वैल्यू हो गया था। तो मुशर्रफ साहब ने 2005 में जब इनकी हुकूमत थी, तो इनके दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ने जनाब नए न्यू सीरीज़ के नोट्स जारी किए, करेंसी नोट जारी किए। तो उसमें उन्होंने जनाब ₹100, ₹50, ₹10, ₹500 और ₹20 के नोट्स जो थे वो नए सीरीज नंबर से शुरू किए। मुशर्रफ साहब के दौर में ही जनाब पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट जो था वो 26 मई 2006 को 5000 का नोट जनाब जारी किया गया था। ये भी जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत अहम सवाल है कि 5000 का नोट 26 मई 2006 को इशू किया गया था। तो ये जनाब 5000 का सबसे बड़ा करेंसी नोट जारी किया गया था।
ये जो नोट जितना बड़ा किसी भी मसलन हुकूमत गवर्नमेंट का जो जारी करती है, उतना ही वो गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं होता। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे मसलन करप्शन जो होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ती है और जो करेंसी होती है वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। असफ अली जरदारी साहब जो था, इनका दौर जनाब आता है 2008 से 2013 तक। तो 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही जनाब। इसमें मसलन ये सदर रहे और $1 जो था इनके दौरे हुकूमत में जनाब 100 रुपये का हो गया था। पहली दफ़ा डॉलर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। तो इनके दौरे हुकूमत में डॉलर जनाब 61 से शुरू होकर 100 तक पहुंच गया था। तो तकरीबन 39 रुपये डी वैल्यू हुआ था। इसके बाद जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट आ जाती है। वो 2013 से 2018 तक जारी रहती है। तो इनके दौरे हुकूमत में जनाब डॉलर 100 रुपये से बढ़कर 128 रुपये का हो जाता है और डी वैल्यू होता है 28 रुपये। इसके बाद जनाब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आ जाते हैं 2018 से 2022 तक। 4 साल इनकी गवर्नमेंट रहती है। तो इनके दौर में जनाब डॉलर जो है वो उनको शदीद झटका पहुंचता है और डॉलर जनाब 50 रुपये डी वैल्यू हो जाता है। तो इसके बाद जनाब गवर्नमेंट आ जाती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जो 2022 से शुरू होती है और अभी तक जारी है आज की डेट तक। तो जनाब इनके दौरे हुकूमत में डॉलर जो है वो बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाता है और 276 रुपये का $1 हो जाता है, जो आज का रेट है। डी वैल्यू कितना हो चुका है, मसलन 98 रुपीज़ डी वैल्यू हो चुका है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी भी माशाल्लाह गवर्नमेंट में हैं। दुआ करनी चाहिए ये अल्लाह ताला हमारे हालात में बेहतरी लाए। क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है, मसलन इसका इन सब चीज़ों का निचोड़ क्या है। जो इन्फ्लेशन होती है वो डायरेक्टली प्रमोशनल और प्रोपोर्शनल है जनाब डॉलर रेट पे। डॉलर रेट जितना ज़्यादा मसलन उसकी बढ़ता जाएगा, पाकिस्तानी करेंसी जितनी डी वैल्यू होती जाएगी, उतनी पाकिस्तान में जनाब महंगाई होती जाएगी। क्योंकि हर चीज़ आपने डॉलर में बाहर से इंपोर्ट करनी होती है। तेल आप बाहर से मंगवाते हैं, डॉलर्स में मंगवाते हैं। जितना तेल महंगा होगा वो हर चीज़ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, हर चीज़ पे डिपेंड करेगा जनाब। तो इसका कंट्रोल क्या किया जा सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो मुल्क में होगी, तभी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में यही इसी तरह गवर्नमेंट्स रहेंगी कि मसलन वो अभी गई अभी को गवर्नमेंट आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट को 5 साल पूरे हर गवर्नमेंट को करने चाहिए। इसके बाद जनाब नीड सिंसियर लीडरशिप। चीज़ों को जनाब बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को सिंसियर लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है जनाब। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।